Sorry. Thank you very much. Okay, online students, I am recording my session from here on, and we will going to study about the browser called UCSC Genome Browser. Okay, that is a browser which is holding, I believe, a lot of wonderful informations. It's one of the best data collection portal out there on the internet. So if you need to stay in the life sciences, one way or another, you should know how different things are present on the UCSC Genome Browser. The tour will be very quick. You might not be able to remember everything, and that is absolutely fine because we are recording the session as well. So just try to grab as much as possible, or try to listen carefully कि मैं कैसे switch करता हूँ between different things present on this portal. बिल्कुल बेशुमार होंगे, आपको डॉक्टर मुस्तफा की जरूरत ही नहीं है. चलिए मजाक नहीं करता, हम शेयर कर लेते हैं. मैं सच्ची मुच्ची की बात बता रहा हूँ. एंड आई शेयर द सेम थिंग कि हमारे पास इंटरनेट के ऊपर एवरीथिंग इज देयर, बट समटाइम्स यू पीपल यू नो व्हाई यू नीड मी टू स्पीक ऑन दिस थिंग, बिकॉज समहाउ मैंने पता है कि आपको क्या चाहिए. समहाउ मुझे अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है ना इसमें से आपके लिए सूटेबल है. एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस पोर्टल, but I don't know कि मुझे क्या जरूरत पड़ती है. I don't know कि in the future if I want to use one particular aspect of this portal, and I don't know about that portal, but I will going to learn it. That is how every researcher work. So I am not supposed to memorize, or I am not supposed to know about each and everything. मुझे वो पता है जो मुझे चाहिए. अगर मुझे कोई नई बात पूछनी है तो then I will study, and then I will going to incorporate that information in myself. ये हम सब ऐसे काम करेंगे. We are all same in this perspective. UCSC Genome Browser, originally, that is a browser which was created to keep the genomic data of different species. When I said different species, that means from bacteria, viruses. There might be species from plants and animals, and as well as from insects, mouse, mammals, primates, elephant, humans. But we are in molecular pathology and genomics, we are interested in the genomic data of humans. So originally, what is our genomic sequence? We know our genomic sequence, but the problem how we can browse it. You know, जैसे हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में एक फोल्डर पड़ा हुआ है that belongs to human genome, for example. So we can browse it, chromosome number 2, point number this, place number this, and we can actually scan and browse different portions of human genome. So this browser allows us, whatever I'm telling you, this is not the only thing. Whatever I'm telling you is the first thing I'm telling you. So this browser is allowing you to browse the human genome comfortably and in a much easier way. You can ask me others as well. Well, since in molecular pathology, I will going to talk only on the humans. But there are other genomes as well. The first thing I'm showing, click on the genome. You will see there are written human GRCH38/HG30. This is one of the assembly of the human genome submitted to this portal. Look at the other one, human GRCH37/HG9, another assembly of humans submitted on this portal. This is the assembly of the genome of the mouse. This is the assembly of the genome of the mouse submitted earlier. This is the assembly of this thing. This is the assembly of SARS. Oh wow, आजकल तो ये होगा ना. ये भी आ गया. And then there are others. If you go to the others, you will find other species. इन दोनों में फर्क ये है कि over the period of time, we assembled new information, and then we assembled old genome once again with some newly incorporated information. Because there was a consensus about certain gene. यहाँ पर T नहीं, यहाँ पर C है. In most cases. For earlier cases में ज़्यादा गलती से ये आ गया. Actually यहाँ पर C है. So we will going to replace that sequence with the C, and we will update the genomic data. So this is like a more updated version of genomic data. But you also should understand and remember that the people, in the meanwhile, when the assembly was established, in the meanwhile, they started growing and developing other information which are associated with the genomic DNA. असल में जो उसका कमाल है वो ये है, genomic DNA sequence मालूम करना बच्चों का खेल है. जो मैं बोला अभी दूसरा जुमला रिपीट करता हूँ. The real thing is that the people are working on different aspects of sciences, and they need to relate that information with the genomic data. So this portal is not only giving you the genomic sequence of humans, but it is also
it is also helping you to relate the upcoming information with the genomic DNA. मिसाल के तौर पर, I let me make this thing easier. मिसाल के तौर पर, if somebody is working that where a particular protein called c-MYC, a c-MYC is a DNA binding protein. It will go and bind with the genomic DNA. MYC कर लेते हैं, c-MYC है basically, MYC कर लेते हैं, या any protein. There is a protein called X, protein X. It can bind with the genomic DNA. Where that protein is binded on the genomic DNA, somebody has executed that experiment. He found all the places on the genome where that protein is present. So this is the place where that protein is present. All that place, that protein is not present. And then there is a place where that protein is present. And then there is a place where the protein is present. So it can help you to understand where that protein is present on the genome. So we can relate and connect that data with our genomic DNA. Somebody else has executed a bigger experiment. He actually quantified the amount of that protein X present on the genome. The protein X is present in less amount at that place. It is present in more amount in another place. It is present in even more amount in another place. So we can actually connect these two information with the genomic DNA. So genomic DNA sequence is acting as the anchor point where we can load different information. So लोगों ने जितने भी experiments किए in the meanwhile, they started producing hell of the data. मैं आपको दिखाऊंगा अभी, you will see. You might see, sir मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेला, तो तुसी मैंने किधर लेके जा रहे हो? I don't like. This is the real world of research and science. This is the real expertise. जहाँ पर आप मुझे इस बात पे शाबाशी दे सकते हैं कि सर को ट्रांसलेशन आती है, ट्रांसक्रिप्शन का पता है, जीन नरेशन. This is not established 100 or not 100, but many years ago. I was learning this thing since I was in FSC. This is supposed to be the data, real time, real information out there. Next. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं किस तरह से हम? Now the first thing you should know that how I can get the genomic DNA sequence. वो मुझे नजर कैसे आएगा, दिखने में कैसा होगा? The first thing, you need to pick the assembly. If you ask me, sir, इन दोनों में से कौन सी assembly pick करनी चाहिए? Remember, when an assembly is established, people will start loading their information on the assembly. When a new assembly is established, the new assembly will going to have a better sequence, but less information will be loaded on it. क्योंकि वो भी आई है. More information might be loaded on the earlier assembly. So which one of them you need depends on your choice. वो तो SARS-CoV-2 तो डायरेक्टली है ना, उसका ताल्लुक ह्यूमन जीनोम से है ही नहीं, वो तो इतना सा सीक्वेंस है. SARS-CoV-2 तो फारग है ना, उसको तो छोड़, वो तो बच्चों का खेल है. हम SARS-CoV-2 से, SARS-CoV-2 is like a planet Earth and we are talking about our galaxy. Okay, that much big. वो वैसे वो मुझसे पढ़ लेना, वैसे मुझे पढ़ाना चाहिए आपको SARS-CoV-2 क्या होता है. It's nothing. The more important thing is that what we are. हो गया? I had time on. So the thing which you should know about this portal, that where you should click and what will be there after that. मैं एक बार फिर बता दूं, you will see sir, बड़ा सादा है, बड़ा simple सा है, but the places which I am showing you to click and to explain will take you like months to understand. This is the best way. G. Now good point. ठीक है. The 37 is earlier. The 38 is the one who is recent. Human की दो assemblies पड़ी हुई हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं GRCH38, GRC. This one is the older one and this one is. अगर मैंने loaded data के हवाले से काम करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अगर आज पर्स करें मेरे सामने एक पेपर आता है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, and I want to work on some protein. मैंने देखना कि वो प्रोटीन डीएनए पे कहाँ पे मौजूद है, and there is high chances that information is loaded on the earlier. But I can browse both of them at the same time. मैंने कुछ ना रोका कि मैं पिछली ना देखूं. But you will see the difference of information loaded on these two assemblies differently. But the sequence of the genomic DNA will be improved and better with more consensus with more evidences is the earlier one, is the latest one. So this one. So I will select this assembly, the first thing. Okay. And then I will ask that thing to take me to the genome browser. Actually, it will automatically take me to the genome browser. When for the first time you open the genome,
browser, it will appear like this. It will be like this. You will see things like this. Contains a lot of lines and weird things and some other. Now let's take all what I know, okay, in small a period of time. This picture which you are looking at right now, in that picture, this is the scale of the picture that will help you कि आप कितने बड़े scale पे इसको genome को देख पा रहे हैं. Can you see the scale कहाँ से कहाँ तक है? 10 kb. Scale कितना है? तकरीबन 10 kb का. 10 kb के scale का मतलब अलग बनना हो जाए. 10 kb के scale का मतलब ये है, 10 kb के scale का मतलब ये है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यानी कि कितना जूम इन किया हुआ है हमने. ये बात समझ आ रही है ना? हमने कितना जूम इन किया हुआ है. ये हिल जाता है. आई एम सॉरी. डॉक्टर मुस्तफा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. साइंस की ऐसी की तैसी, हमें तो टेक्नोलॉजी ने मार दिया, डाटा केबल ने. यार सानू बर्थडे नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकी पढ़ने से. ये देखो सानू डाटा केबल लाके बह गए. ओके, मैं हूँ हिलना ही नहीं, मैं दूर दूर स्लो बात. मैं हल्का सा स्मार्ट होने की कोशिश की है, 2-3 चीजें लगा के तो हिल गया. स्टिल लोग को पढ़ाना चाहिए. सो लेट्स सी द स्केल. द स्केल विल हेल्प अस कि हम डीएनए को हमने जीनोमिक डीएनए कितना जूम किया हुआ है. तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज अबाउट 10 kb. 10 kb का मतलब होता है, k का मतलब होता है 1000. सो अबाउट 10,000 बेसिस यहां से लेके यहां तक है. सो यू कैन गेस के इस पूरे रीजन में आमतौर पे कितना जीनोमिक डीएनए आप विजुअलाइज कर रहे हैं. ये जो जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है, ये शुरू कहां से हो रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग समवेयर फ्रॉम हियर. यहां से कहीं से शुरू हो रहा है. ये उसका नंबर है. कैन यू सी द सीक्वेंस नंबर? ये 505 मैं शुरू से नहीं पढ़ रहा. एक्चुअली इट इज 15,565,000 and this is like 15,570,000 and this is like 15,600,000 तक के तकरीबन पूरा रीजन होता है. आप कैश करेंगे तो ये फ्यू 10 kb के बराबर होगा डिफरेंस. जो चीज मैं देख रहा हूं ये एग्जैक्टली कहां से शुरू हो रही है, इस चीज का आंसर यहां पर मौजूद है. द इंफॉर्मेशन इज हियर, व्हाटएवर आई एम लुकिंग एट. मैं आपको ना फेमिलियर करवा रहा हूं तस्वीर के साथ, वन बाय वन सारे फैक्टर्स को याद रखना. वैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में भी पता लगा सकते. द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट हियर कि मैं किस चीज को देख रहा हूं. मैं देख रहा हूं क्रोमोसोम एक्स को. एक्स क्रोमोसोम पता ना क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, मैं क्रोमोसोम एक्स को देख रहा हूं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस 15,560,138. दैट मींस 15,560,138 बेस पेयर से ये स्टार्ट हो रहा है एक्यूरेटली. आगे डैश है, देयर इज अ डैश ओवर देयर. यहां से लेकर 15,602,945 बेस पेयर तक की लेंथ को मैं देख रहा हूं. इफ आई क्लिक ऑन द जूम, यहां जूम लिखा हुआ ना, जूम इन. इफ आई, मैं करूंगा नहीं, आपने भी नहीं करना, अभी नहीं करना. इफ आई क्लिक ऑन द जूम, आप गैस कर सकते हैं कि ये 10 kb जो है ये कम हो जाएगा. दैट विल गोइंग टू बी 5 kb और मे बी 1 kb और फिर डिस्टेंस. लेकिन हम जो भी चीज देख रहे होंगे उसका एक्यूरेट डिस्टेंस यहां पर लिखा हुआ. और ये लेंथ कितने बेस पेयर की बनती है? आप इस वाली फिगर को माइनस कर दो इसके साथ कैलकुलेटर पे ना. अगर आप माइनस करते हैं 15,602,945 को माइनस कर दें, इससे जवाब आएगा 42,808 बेस पेयर यू आर लुकिंग एट. और क्रोमोसोम कौन सा है? एक्स. This picture, this one, help you to exactly see where you are looking at. This is the chromosome X, showing you bands में नजर आ रहा है ना, light and dark bands में नजर आ रहा है. ये centromere होएगा. And this is the red line is the place where you are looking at. ये इतने kbs की है. This is a place. Actually वो हमें बता रहा है कि हम यहाँ देख रहे हैं. Chromosome X, P22.2. P आर्म के ऊपर है, and then the band and the sub band, the things you have
ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, महसूस हो रही है रिसर्च और साइंस थोड़ी थोड़ी। Looking at the thing, it's about knowing about the things कि genomic DNA होता है। Now it's about actually experiencing that stuff कि वो क्या। अगर आप लोग ये भूल गए थे, जैसे माँ दूध नहीं ना बख्शती, मैंने आपको ये नहीं बख्शना, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल, यानी कि मुश्किल नहीं कहना चाहिए। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट यू गाइस टू नो। ये तोहफा है मेरा। ओके, तो आप किसी भी जगह को ब्राउज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने किसी अपने मर्जी के क्रोमोसोम पे अपनी मर्जी की लोकेशन को देखना हो, what I will going to do, I will type here instead of chromosome X, I will type chromosome 1, I will type chromosome 2, and I will type the locations in this way. इसी फॉर्मेट में मैं वो लोकेशंस पुट करूंगा, the browser will take me to the there. So I can like go to any place. All I need to do, house number 262A, street number this, defense phase this, Lahore, Pakistan, something like that. ये हम कर सकते हैं। या फिर ये तो बहुत ही साइंसदानों वाली बात है ना, जब आप किसी को बताएंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लोकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट a place on the gene, I'm talking about the first exon of the TP53. There's a one way of talking with each other. How about our way of talking, researchers' way of talking? You can actually pinpoint the place. Okay, I'm talking about chromosome number 15, base pair number this to this. That is actually the exon number 1 of the TP53. तो एक जनरल बात करना और एक साइंटिफिकली एक्यूरेट नंबर्स के साथ कि I'm talking about this place. See further, आगे देखो जरा, हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। कौन सी जिनको सर्च करें बोलो जरा। कल हमने 2 दिन देखे थे, तो आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर होगा उनके बारे में, उनके एक्सोन्स के बारे में भी फेमिलियर होगा। एक छोटा सा देखा था, एक बहुत बड़ा देखा था। छोटे वाला कौन सा था? वो ज्यादा था, उसमें एक्सोन ज्यादा है, मिक्स था। तो let me write M by C. Do not write and click on the search button. ये मेरी जो मशवरे है ना, ये संभाल के रखना, बड़ा खज्जल होना आपने डॉक्टर मुझसे करते हैं, फटाफट हो जाता है। ਅਸੀਂ करने का सानू कभी उथे लेके जा रहे हैं, कभी उथे लेके जा रहे हैं। We are lost in this jungle. ये मैं आपको मैप बना के दे रहा हूँ कि where you need to go, ताकि आप इसमें गुम नहीं जाए और इन्फॉर्मेशन गलत ना। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, मतलब आपकी रिसर्च प्रोडक्ट गलत हो सकता है, आपके जीन का सीक्वेंस गलत पुट कर सकते हैं, you can make a lot of mistakes. So I'm just trying a map for you to follow that map in order to trace down certain things. अगर मुझे मिक जीन के बारे में देखना है कि वो कहाँ है क्रोमोसोम में, मैंने मिक टाइप किया, एंटर नहीं करना, आपने इसमें से पिक करना है कि किस मिक की बात हो। हाँ नहीं, सारे ह्यूमन जीनोम के अंदर ही है, जुट्टी लाल नहीं मैं और जानते सूचना तो लेके पास जाने, मैं इस बात से माना ह्यूमन जीनोम के अंदर ऐसी। हम ये देखेंगे कि MYC जो है वो और भी बहुत सारे जीन्स के सिंबल से मैच करता होगा, है ना। MYC दिस, MYC BP, हम किसकी बात करें, इसको हमें इसका नाम आता होगा, हमने NCBI में टाइम्स द रिकॉर्डिंग। क्या बात पूछना था, क्या पूछना था तुमसे वो रेड लाइन के बारे में? जी 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 जी, यानी कि अगर आप मुझसे पूछें कि ये पूरा क्रोमोसोम है, हम किस चीज को देख रहे हैं, किस जगह को देख रहे हैं, तो ये रेड लाइन का मतलब है हम इस जगह को देख रहे हैं। ये नीचे वाला पूरा, मैंने मैंने इसको बताना है, मैं अभी ऊपर से नीचे आ रहा हूँ कि ये नीचे क्या है। अभी हमने ये देखा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, हौली हौली, लाख ना टूट जाए। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने चूज किया कि व्हाई नॉट वी शुड सिलेक्ट बाय आवर ओन चॉइस। उदाहरण यही करना पड़ेगा, आप मिक जीन चूज करें, TP53 चूज करें, आप ATM चूज करें, आप BRCA चूज करें, BRCA1, BRCA2, व्हाटएवर, बट डू नॉट ट्राई टू हिट द सर्च बटन बिकॉज इट विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शन और आप घूम जाएंगे उसमें। तो मैं मिक लिखता हूं और उसके बाद आई लेट द सर्च ऑप्शन, ये मिक द फर्स्ट वन, ये वाला वो है, पार्टिसिपेट्स इन द रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, बाइंडिंग DNA, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी समझ तो होगी कि यार ये इसी की बात हो रही है। आई विल सिलेक्ट दिस वन, ओके। Once I select that one, the genome browser will take me there and will open up that portion, that region of what? That region of MYC. So right now I at the place of MYC. अलीजा मुझे बताओ कि MYC जीन जो है वो कौन से वाले क्रोमोसोम पे है?
शाबाश। अगर आपको डाउट है ना तो मैं दसें, दैट इज वेरी बैड। यू शुड बी एज एक्यूरेट एज लाइक अ ईगल ऑन दैट। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, अब वो मेमोरी का नहीं, बिग जिन कौन से डाला जिनोम ब्राउजर में, यू विल सी क्रोमोसोम, सिर्फ क्रोमोसोम 8 की बात नहीं बताएंगे आप उसको ये बताएंगे ये कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। शाबाश। इट्स प्रेजेंट द क्यू आर्म। जो लोकेशन है वो 24.21 है। क्या आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं? मेरी तस्वीर की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। हियर कैन यू सी द रेड लाइन? दिस इज द प्लेस, यहां पर है वो, क्यू आर्म पे है उस साइड। एंड देन एंड लास्ट फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, चलो भी रीड करो जरा। 4 से स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट वीक चेन। तो यू एग्जैक्टली नो कि क्रोमोसोम में कौन से वाले बेस पेयर से स्टार्ट होता है, कौन से वाले बेस, कितनी लेंथ है इसकी, बेस पेयर की लेंथ है आपका जो आप देख रहे हैं, इसका स्केल कितना है? 1 kb स्केल है, मच स्मॉलर ना, ये 10 टाइम्स स्मॉलर है। दिस इज लाइक लॉट ऑफ जूम इन थिंग है, ये काफी जूम इन किया। इट स्टार्ट, ये उसके सीक्वेंस के नंबर्स है। नाउ 4365 is the genomic region of that MYC gene. It includes introns, it includes exons. इसमें introns भी होंगे और इसमें exons. जीन कहां से बिलोंग करता है? जीन बिलोंग्स ओनली टू द exons. Now अब हम आते हैं जरा नीचे मुश्किल जगह की तरफ, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में आ रहे हैं, यहां तक पहुंच रहे हैं। ओके, These things जो हमारे पास horizontal lines हैं, इन्हें कहते हैं tracks. There are different tracks over there. इन्हें कहते हैं, ये भी एक track है। You can see, अगर माउस से गिराऊंगा, ये एक track है, ये दूसरा track है, ये third track है। हर track का अपना मतलब है। We can add or remove the tracks according to our need. ये जो track जिसमें मेरा माउस है, लिखा हुआ reference assembly fixed patch sequence alignment. ये कोई additional information बाद में इन्होंने incorporate की है। I don't want to see it. I right click and hide. It will be hide. I don't need it. What is that? This is reference assembly alternate haplotype sequence alignment. कोई और update additional I don't want to see, निकाल दिया। I want to see this, हाँ इसको देखते हैं पूरा। I want to see this, हाँ बताता ना, क्योंकि we don't need to see everything on the genome. जिस जो हमारा area of interest होएगा, जो हम अभी इस वक्त हम सिर्फ जीनोम स्ट्रक्चर एक्सोन्स को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक्स में से ये सब हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं, मुश्किल में भी डाल सकते हैं। Look at this track, whatever blah 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 blah. Look at blah blah blah. निकालो इसको, hide. निकालो इसको। I don't want for the time being. I will show you कि इन सब का काम क्या है, इन सब की अहमियत क्या है। हाँ? You can hide it and you can दोबारा add it as well, depending on the requirement. ये conserved CO, ये consensus sequence है 100 vertebrates का। इसका मतलब है जो भी सीक्वेंस मैं देख रहा हूँ ह्यूमंस का, उसको अलाइन किया हुआ है 100 दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ। That will help me to see which sequence is conserved and which sequence is not conserved. ये बात समझ आई है? तो बहुत महंगी अगर समझ आ गया, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लेना मेरे से कि अगर ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को हम कंपेयर करें 100 दूसरे वर्टिब्रेट्स के सीक्वेंस के साथ, तो जिस जगह पे बहुत ज्यादा मैचिंग होगी, that part might be important फंक्शन के लिहाज से। You know why? Because nature has conserve that sequence in the 100 vertebrates and in humans as well. कुछ खास जगह है ये। If there is a variation between vertebrates and humans at some part, हम कह सकते हैं कि यार ये कोई इतनी जरूरी चीज नहीं थी। It might be variation over there. ये एक इशारा होता है कि you are looking at something special part of the genome or a less special part of the genome. वो ये 100 vertebrate. So there are a lot of others. मैं इनके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये गड़बड़ होती चली जाएगी। I don't want to go there. अभी नहीं छोड़ो उसको, बस बहुत है, इधर लो, एक वक्त में एक चीज ये काफी है। लुक एट दैट, कैसे इंटरप्रेट करेंगे जीनोमिक सीक्वेंस को। अब हम रियल प्लेस के ऊपर आगे जहां पर हम जीनोमिक सीक्वेंस की इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। दिस जीन, बिग जीन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट एंड्स हियर, बट दैट रीजन आल्सो कंटेन सम फ्रैगमेंट ऑफ अनदर जीन। कैन यू सी द नेम? CASC11. It actually starts from here and it goes in this way. It is an overlapping sequence of some other gene. The next question you should ask yourself, that what is the direction of that gene?
डायरेक्शन ऑफ जीन ये होती है जहां से आरएनए पोल टू शुरू करता है, वो उसी, लेकिन ये दोनों तरफ हो सकता है ना, यू नेवर नो, यू नीड टू सी कि जो आप देख रहे हैं उसमें 3 to 5 या 5 to 3 किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ द जीन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ जीन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इन एरोस को, इफ यू आर एबल टू सी these arrows are directing from this direction to this direction। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट एक्सॉन किस तरफ होगा, द फर्स्ट एक्सॉन विल बी प्रेजेंट on that side, this side, इस साइड पे होना चाहिए। where should be the last axon, it should be present here। नहीं अभी नहीं पता लगा, डायरेक्शन ऑफ द जीन आरएनए पोल टू इस तरफ बाइंड करेगा और इधर को जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन इतनी मैटर करती है इसकी। द नेक्स्ट थिंग, ये बहुत सारे मिक लिखे हुए हैं, मैं किसको क्लिक करूं, मैं किसके बारे में बात करूं। यूजुअली आमतौर पर द हाईलाइटेड मिक इज द एक्चुअल वन वेयर यू नीड टू see or study, but since it's a research portal and there are other alternative opinion about the sequence of a certain gene might be present and they require all the quality standards as well, so UCSC might put their data as well, the alternate options as well, the other options as well. So this is the MIC sequence of the genome from other sources or multiple sources, but the consensus one is the one which is highlighted in dark. Can you see MYC? This you should look at that thing. अगली बातें किसके साथ है? नहीं ये वाला मिक जो है ना, दिस इज द वन विच वी नीड टू थिंक। आप पूछते हैं कि ये इसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, सबके साथ एरोज है ना, ये वाला एरो, ये वाला एरो क्यों आ रहा है? ओके ये एरो वाला मतलब आगे है, आगे भी है, इससे आगे भी है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, जिसमें इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर ओवर देयर। ये मिक यहां से स्टार्ट होता है और ये मिक जिंग यहां पे खत्म होता है, ठीक है। कौन सा वाला? ये सेकंड लास्ट वाला, इस पे अपने फोकस करना, अपना ध्यान जो है फ्री कर लें इसके ऊपर। सारा आपको बता देना हौसला, क्योंकि ये जो है ना, ये तरतीब मेरी वाली तरतीब पे रहो, ठीक है, गड़बड़ हो जानी है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि एक जीन या जीनोमिक रीजन के रीजन पे जो सीक्वेंस होगा, दैट सीक्वेंस माइट बिलोंग्स टू इंट्रॉन, दैट सीक्वेंस माइट बिलोंग टू एक्सॉन्स। यहां पर जितना भी सीक्वेंस होगा वो इंट्रॉन एक्सॉन्स दोनों से जुड़ा हुआ होगा, उनका ताल्लुक दोनों से होगा। जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, भूल जाना बादशाह, ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर की मेहरबानी है, मैं जेन बदल गया तो क्या करोगे। ये जो ब्लॉक्स हैं, दीज ब्लॉक्स आर इंडिकेटिंग द एक्सॉन्स, दीज ब्लॉक्स आर इंडिकेटिंग व्हाट? द एक्सॉन्स। अगर आपको मिक सीक्वेंस एनसीपीआई में याद है, सीसीएस डीसी में देखे गए थे, तो मैंने कहा था अल्टरनेट कलर्स हैं, पहला कलर छोटा सा ब्लैक, फिर ब्लू बड़ा सा, फिर तीसरा बड़ा सा, तो आपने कहा था पहला 3 एक्सॉन्स हैं इसमें, पहला वाला जरा छोटा है। तो फर्स्ट ब्लॉक विच यू कैन सी हियर इज अ वेरी स्मॉल वन, दैट इज द फर्स्ट एक्सॉन। इस एक्सॉन के बाद ये जो सारा रीजन यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, ये कौन सा है? इंट्रॉन। इफ आई टेक माई माउस एंड प्लेस हियर ऑन मिक, यू कैन सी इट रीड्स, इसने एक कोड लिखा साथ में ENST, ये वो कोड है जो इस एक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू दिस पोर्टल। ये कोड इज नॉट देयर टू बी यूज्ड इन NCBI, ये UCSC ब्राउजर के लिए या इससे एसोसिएटेड किसी और ब्राउजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने मिक के पहले एक्सॉन पे माउस रखा, उसने मुझे बताया कि दिस इज द कोड ऑफ दैट एक्सॉन। ये स्ट्रैंड कौन सा है? प्लस वन ऑफ द स्ट्रैंड सीक्वेंस। कौन से स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा? ये प्लस स्ट्रैंड का। अगर हम सीक्वेंस देखने में कामयाब हो गए तो ये प्लस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। एंड द लास्ट थिंग, ये क्या है? ये एक्सॉन 1 है आउट ऑफ 3, इसके 3 एक्सॉनों में से पहला है। इसका मतलब है अगर मैं इसी को लेके यहां चला जाऊंगा, अगर मैंने यहां अगर मैं इसी को लेके यहां आ जाऊंगा, व्हाट दैट इंडिकेट्स? ENST द सेम वन, द जीन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, मिक, ये स्ट्रैंड प्लस है, ये इसका एक्सॉन 2 है आउट ऑफ 3। व्हाट विल बी दिस वन? ये कौन होगा? एक्सॉन 3 ऑफ द 3। नाउ आप बताओ ये दरमियान वाला क्या होगा? दिस इज एक्सॉन 1 ऑफ
there are 2 इंट्रॉन्स, ये उनमें से पहला है, and what will be this one? So you can see कि इंट्रॉन्स कहाँ पे है, एक्सॉन कहाँ पे। अगर ज्यादा एक्सॉन्स होंगे तो अल्टीमेटली ज्यादा इंट्रॉन्स होंगे, बट यू कैन फिगर इट आउट। अब आप गैस कर सकते हैं कि पहला सीक्वेंस एक्सॉन का छोटा था, इट मेक सेंस, दूसरा लंबा सा था, इट मेक सेंस, तीसरा भी काफी लंबा था, दैट मेक सेंस। द नेक्स्ट थिंग यू शुड नो इज दैट the blocks represents the coding sequence. The block represents the coding sequence. If the block width is more or maximum, that is the coding sequence. If the block width is maximum, that is the coding sequence. इसको समझना कैसे है मैं बताता हूँ, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। जूम करना पड़ेगा मुझे, कि मैं अभी जूम नहीं कर रहा, मैं पहले दे रहा हूँ कि आप पूरे डिस्टेंस को समझ लें, सीक्वेंस निकालें फिर जूम करना। सो इसमें 3 सीक्वेंस हैं, दिस वन इज एक्सॉन 1। अगर हम इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर जो भी सीक्वेंस होगा दैट बिलोंग्स टू एक्सॉन 1। अगर हम इस जगह को जूम करेंगे, जो भी सीक्वेंस आएगा वो इंट्रॉन 1 का होगा। अगर इसको जूम करेंगे दैट विल गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ एक्सॉन नंबर। हम इसको कर सकते हैं। ओके, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहां से होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या, बट दैट इज क्लियर। The next question is that can I get this sequence out? क्या मैं ये सीक्वेंस निकाल सकता हूं? इस पूरे जो मैं देख रहा हूं वो क्या है? अगर आपने इसको हल्का सा भी माउस को इधर किया, हल्का सा माउस को इधर क्लिक किया, you will not end up in the same place. This place is important. ये पिन पॉइंट लोकेशन है, एक्यूरेट। इसको आगे पीछे करने से सीक्वेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग, मैं इसे क्लिक नहीं करा किसी जगह। क्या हम इस जगह का सीक्वेंस निकालना चाहते हैं? If you want to get the sequence out of this place, आपको यू करना पड़ेगा, आपको व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, then you need to go to DNA. Okay, मैं इसको पीछे कर दूंगा कि आपको click on the view, click on DNA. It will give you, if you ask you certain things, certain questions, share with certain information with you. ये आपको बताएगा कि क्या करूं आपके लिए। HG38 असेंबली है, ये वाली है ना जो मैं यूज की थी। फिर वो कह रहा है आपने डीएनए चाहिए, मैं आपको डीएनए देने वाला हूं। कहां से? पोजीशन फ्रॉम दिस टू दिस, यू कैन मैच दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट जीन। ओके, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, यू वांट टू रिमूव एनीथिंग, यू वांट टू एडिट द थिंग। सीक्वेंस फॉर्मेटिंग ऐसे, किस तरह का सीक्वेंस किस फॉर्मेट में चाहिए आपको? ऑल अपर केसेस चाहिए, लोअर केसेस चाहिए, सिंपल थिंग्स, एंड यू क्लिक ऑन द गेट डीएनए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दैट जीन। All that information which you should know as a researcher is written in this page. क्या चाहिए आपको? ये HD38, ये उसका सीक्वेंस असेंबली है। क्रोमोसोम 8 starting from there ends there, and there are certain other, ये कुछ कोड्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको, मुझे नहीं आते नहीं आते। अच्छा, पॉजिटिव स्ट्रैंड लिखा हुआ है। Then you need to copy this thing. You can copy this stuff. And then you can save this information for yourself. Okay? ठीक है? तो मैं इस ये किसका सीक्वेंस है? मिक चेन का। हाँ, तो एंजॉय करना उसको। अल्लाह मेरा लैपटॉप देता है, माउस देता है, साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है कि अगर हमने चेंज किया या क्लिक हो गया ना, और हम डाटा एक्सट्रैक्ट किया तो आप गलत करेंगे। आप अगर उसको सेव करेंगे, मैंने वो जो नंबर्स नहीं है ऊपर वो मैटर करते हैं, वो नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैंने अभी पेस्ट किया उसको सीक्वेंस को देखना, यहाँ पर कमेंट्स में आ जाएंगे। ये ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कमाल, ये कमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, कभी आप कोई नोटपैड की फाइल बना रहे हो, कभी आप कोई नोटपैड की फाइल बना रहे हो, तो आप ये वाला कोड लगाएंगे, लगा के देखना। आप ये वाला कोड लगाना, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये से, और उसके आगे आप जो कुछ भी लिखेंगे दैट विल गोइंग टू बी एडेड इन कमेंट सेक्शन ऑफ सीरियल क्लोनर फाइल। आप ये वाला क्या है, ग्रेटर देन साइन, ये जो भी साइन है ये डाल के इसके आगे लिख दें, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल दा, दैट विल गोइंग टू बी एडेड इन द कमेंट सेक्शन। ये वो कोड को इस तरह सेंस करता है। हाँ, ऐसे कुछ तो। अच्छा, अब आप देखो, हमने
जो सीरियल क्लोनर की फाइल बनाई है उसमें ये सीक्वेंस किसका है? एक्सॉन्स का भी है, इंट्रॉन्स का भी है, और इसके अंदर दूसरा एक्सॉन भी होगा, फिर इंट्रॉन भी आएगा। फिर हमें क्या पता पहला एक्सॉन का है, हमें दूसरा एक्सॉन का है? हमने कल एक फाइल बनाई थी लास्ट में, याद है ना? उसमें सीक्वेंस एक्सॉन 1 कहीं ना कहीं पर पड़ा ही होगा, होगा ना? अगर मैं कहूं मुझे मिक जिन का एक्सॉन 1 का सीक्वेंस दो, कहां पर होगा? कहां से लूं? मिक जीन का एक्सॉन 1 का सीक्वेंस कहां से हमने पढ़ा हुआ है? याद है ना? याद है सब तरह। वो भी लिख रहे थे, डायरेक्ट चले जाते वहां पे। हाँ ये भी सही है। मिक जीन आ गया। नहीं ये तो सॉरी, आई शुड गो टू द जीन। मैं लंबे रास्ते से लेके जा रहा हूँ आपको, लेकिन चले चलते हैं, कोई बात नहीं, हम भी फारग हैं, आप भी फारग। मिक जीन, इट्स अ बर्थडे लेक्चर, सो एंजॉय द केक। ये क्यों नहीं सर्च कर रहा है? अच्छा अभी चलते हैं ना आगे। ये मिक जीन आ गया, ये आपकी याददाश्त को रिवाइज करने के लिए। और अगर आप भूल गए ना, भूल गए, अल्लाह पूछेगा। मैं अगर आपको ये भूल गया ना, मैं आपको अगर कोई मेरे से पूछने आया ना अगले सेमेस्टर में, नहीं उससे अगले सेमेस्टर में, सर जी वो जो आपने यूसीएससी जीनोम ब्राउजर पढ़ाया था ना, मुझे एक जीन मिल गया, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे दे दिया, उसने कहा इसका सीक्वेंस देख लो, तो मैंने कहा किਵੇਂ कटना है, जो मैंने आपको दांत निकाल के दिखाने हैं वहां पे। ओके, आगे अब हमने बेसिकली पहले ट्रांसक्रिप्ट डिफाइन करना है। हम जा रहे हैं इसके रेफरेंस सी ऑप्शंस पे। वैसे हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते थे कंसेंसस सीडीएनएस सीक्वेंस में जाके, लेकिन सिर्फ अपनी याददाश्त को रिपीट करने के लिए दिस वन रेफरेंस सीक्वेंस, ये लास्ट लेक्चर है, इट विल टेक मी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और यहां पर हमारे पास we should be able to see CDS or consensus CDNS, this one, or we can take it to the CCD site, क्योंकि वहां पर जरा एक्सॉन्स को वखरा वखरा दिखाया गया है। इस पेज के ऊपर मेरी याददाश्त के मुताबिक जो पहला ब्लैक सीक्वेंस आएगा that belongs to the first exon, है ना? ये छोटू सा this one, यहाँ तुसी नहीं, this one C से स्टार्ट होगा, CAG, ठीक है? अल्लाह करे कॉपी हो जाए, कॉपी कर लें, एंड देन वी गो टू द सीरियल क्लोनर। इसके अंदर ये पहला वाला पोर्शन ये होना चाहिए, अगर हम साइंसी तौर पर ठीक जा रहे हैं। कंट्रोल F, हमने कर लिया कंट्रोल F। यहां पर क्यों आ रहा है? उसको अलग क्या आना चाहिए, कंट्रोल V। ये सीक्वेंस 1 से लेकर 30 तक, अगर मैं क्लिक करूंगा इसको, दैट विल हाईलाइट द सीक्वेंस फॉर मी, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट एक्सॉन। ये क्या है? ये पहला एक्सॉन। हाँ, अगर हम चाहूं तो अब मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ ना, मैं अपना रिसर्चर हूं, मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ, तो ये क्या है? दिस इज द एक्सॉन 1, इसको रंग देते हैं ब्लू में, ठीक है? एंड हाउ अबाउट वेयर द सेकंड एक्सॉन इज स्टार्टिंग? वो स्टार्ट फ्रॉम C, ओहो, it starts from here, something 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 something, मैं नहीं कर रहा पूरा, okay, copy, that is good enough to pick, and then I will going to find that sequence। इसका मतलब इनकी आपस में सप्लाई है यूसीएससी जीनोम ब्राउजर की, और नंबर से क्या ऐसे भी, हाँ उस पर क्लिक करोगे तो जो नीचे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नहीं है, हाँ तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, हाँ
दैट विल गोइंग टू गिव अस द सीक्वेंस। ये 1 से लेकर 30 तक ये आया था। अब जो मैंने कुछ बेस पेयर कॉपी किए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ये एक्सॉन 2 है, ये एक्सॉन 2 का स्टार्ट है, क्योंकि एक्सॉन 2 थोड़ा लंबा है। मैं इसका जो अगर फीचर बनाऊंगा तो मैं इसका फीचर प्लस पे साइन करूंगा, क्लिक करूंगा, ये एक्सॉन 2 स्टार्ट, जरा ताकि गलती ना हो जाए ना, एक्सॉन 2 का स्टार्ट है ये पता मैंने जानबूझ के किया आपके लिए, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इंट्रॉन 1 का सीक्वेंस कौन सा है ना? तो बताएगा इंट्रॉन 1 का सीक्वेंस कौन सा है? एक्सॉन 1 से लेकर एक्सॉन 2 के दरमियान में जितना भी रीजन आएगा, ये जी से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर, अल्लाह आपको भला करे, ये जी, ये पूरा पोर्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी द इंट्रॉन 1 सीक्वेंस। बनता है ना इसका फीचर लगाना, यहाँ पे इसको लगाते हैं, हमने खुद मालूम किया है, हमको सीक्वेंस पता है। ये कौन सा सीक्वेंस है, मैं कहानी खत्म करता हूँ। इंट्रॉन 1, और इसका हम अलग कलर बना देते हैं अपनी मर्जी से, जो रंग हमें पसंद है उसके मुताबिक हम, लेट्स ट्राई द रेड वन, ये स्प्लाइस आउट हो जाएगा। जो जीन का सीक्वेंस होगा ना, दरअसल वो यहां से शुरू होगा और ए जी के बाद जी टी नहीं होगा, इसके बाद सी सी टी होगा। अब मैंने एक सवाल आपसे पूछना है और आपने खजल हो जाना उसके बाद। ये मैंने आपको शेयर किया था बहुत अर्सा पहले कि हमें कैसे पता लगता है कि इथों एक्सोन मुक गया तो इथों अगला एक्सोन स्टार्ट होना, फ्रॉम वेयर एक्सोन एंड्स एंड फ्रॉम वेयर द अदर एक्सोन विल स्टार्ट। सिस्टम को जीनोमिक डीएनए में कैसे समझ आती है कि यार यहाँ से इंट्रॉन शुरू होगा, यहाँ पर इंट्रॉन खत्म होगा। And I shared one thing, it's difficult for you to remember, I believe, कि शायद आपको याद आ जाए, मैंने आपको GTAG कॉन्सेप्ट बताया था कि यूजुअली इट स्टार्ट फ्रॉम GT and ends in AG, इंट्रॉन सीक्वेंसेस। स्प्लाइसोसोम वहां से रिकॉग्नाइज करते हैं GTAG सीक्वेंस। आई विश मुश्किल बात है। तो यू कैन सी कि इंट्रॉन 1 इज स्टार्टिंग with GT sequence, okay, and it is ending with the AG sequence। ये अक्सर इंट्रॉन्स के साथ ये खास बात होती है, वो लोग जो जीन्स को, सिंथेसिस को, इन चीजों को समझते हैं, वो इन बातों को पहचानते हैं। किससे? नहीं, आरएनए पोल 2 तो सबको करेगा ना। आरएनए पोल 2 की कौन सी आंखें हैं? आरएनए पोल 2 के पास कौन सा कोई स्टॉप डाउन है? ही विल कीप प्रिपेयरिंग इंट्रॉन है, एक्सोन है, सब वो तो स्प्लाइसोसोम की मशीनरी बाद में इंट्रॉन निकाल देगी बिजनेस, तो वही सीक्वेंस से पहचानती है, इसका मैंने जिक्र किया अभी आपको। तो इंट्रॉन सीक्वेंस निकालने आगे, ठीक है। एक और काम अब हम ये करते हैं कि हम जाने से पहले, हाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं यार, खैर, लेट मी टेक यू बैक टू द प्लेस। अब अगर हम ऐसा करें कि हम अपने यूसीएससी जीनोम ब्राउजर को जूम करके देखने की कोशिश करें, ठीक है। हम इसका जूम फंक्शन स्टडी करते हैं, बड़ा सिंपल है, एक जूम इन है और एक जूम आउट है। लेकिन गेस क्या हो, इस वक्त जो मैं देख रहा हूं एक्यूरेटली वो क्या जगह है? दैट इज द प्लेस ऑफ द जीन। जब आप किसी जीन को सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं यहां पर टाइप करके, तो जो रीजन वो आपके सामने लेकर आता है वो उसका ऑफिशियल एक्यूरेट रीजन होता है, ना उससे एक बेस पेयर पहले, ना उससे एक बेस पेयर बाद। लेकिन अगर आप अपना माउस कर्सर इस्तेमाल करें, जैसे कि हसन ने, अहमद ने किया, हमजा ने किया, सॉरी, जैसे कि हमजा ने किया, अगर आप माउस कर्सर यूज करें तो एवरी क्लिक मींस डिफरेंटली। आप किस जगह पे क्लिक कर रहे हैं, वो कौन सा फीचर है जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट क्लिक रैंडमली ऑन एनीथिंग। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको ड्रैग करूं तो मैं इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर सकता हूं, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम क्लिक करूंगा, बट द कर्सर शुड बी लाइक दिस, उसका जैसे होता है ना, ये माउस की तरह। अब अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड आई विल लाइक, आई कैन ड्रैग दिस, आई विल बी एबल टू सी कि फर्स्ट एक्सोन से पहले की है, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सोन से पहले। वैसे भी जूम हो गया क्लिक होने से, मेरा क्लिक हो गया, जूम हो गया, आगे भी चला गया और जूम भी हो गया, मुझे पता। वेयर इज द फर्स्ट एक्सोन, विच व्हाट इज दिस? मिक, दिस इज द मिक, ये फर्स्ट एक्सोन है। थोड़ा सा आगे चला गया ना उससे, okay, I can click and I can move this thing here,
तो कभी कभी हमें जीनोमिक कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि हमारा जीन जिस जगह मौजूद है उसके दाएं बाएं क्या है, हमारा जीन जहां पड़ा है उसके दाएं बाएं क्या है, ये देखने के लिए अगर आप चाहें तो जूम आउट भी कर सकते हैं। 1.5x जूम आउट कर ले, देखिए स्केल बढ़ जाएगा, 2 KB हो गया, 1 KB छोड़ 2 सा रह गया, और अच्छा 3x कर देता हूं, वी विल बी एबल टू जूम आउट एंड टू सी। ओ पूरा मिक्स देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये पहला इतना छोटू सा पहला जोन, ये दूसरा, ये कहानी खत्म, फुल स्टॉप। 10x कर देता हूं उसको, the mixed gene will going to be almost okay. This is the mixed gene we are talking about, this is the mixed gene we are, or this one mixed gene we are talking about. How about more nx, लेकिन हम we will be able to see कि उसके हमसाये में कौन है ना। You should actually see the genomic DNA in a very different way. आप घर की छत से देखते ना, चांद चंदा मामू नजर आते हैं, चंदा मामू दूर के दोस्त तारे नजर आते हैं, टेलीस्कोप से देखें यू विल सी अ डिफरेंट वर्ल्ड। एक फेमस सेलिब्रिटी ने कहा था, व्हेन यू कीप लुकिंग एट द स्टार और स्काई, आफ्टर सम टाइम द स्काई विल स्टार्ट लुकिंग बैक टू यू। है कोई नहीं, खैर रंगबाजी कर दे मेरे, हाँ नहीं स्टेटस बन जाएगा तेरा व्हाट्सएप का चंगा। इफ यू कीप लुकिंग एट द स्टार एट द स्काई फॉर सम टाइम, द स्काई विल स्टार्ट लुकिंग बैक एट यू, होता है ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि मिक्स जीन के आगे कौन सा जीन है, उसके पीछे कौन सा जीन है, और क्या ये जीन रिच थी ना। क्या आपको याद है मैंने बताया था कि जीन्स के ऊपर की जगह होती है जहां बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, कोई होता है कोई कल्ला कल्ला होता है, जीन डेजर्ट होता है, कोई ऐसी जगह जहां पर जीन्स होते ही नहीं है। तो यू कैन, इट सीम्स वेरी एक्टिव थिंग, जहां पर आसे पासे बहुत सारे और भी जीन्स मौजूद हैं, जिनके मुख्तलिफ, इनमें से कोई ऐसा मशहूर जीन तो नहीं होगा शायद जो हमें पीटीवी लग रहा है, लेकिन ये पीवीटी है, एंड CASC19 एंड PVT1 एंड PCAT, CASC CCAT2, something like that, lot of genes out there. Okay, let's move back, let's zoom in one thing. इतना डेजर्ट में तो बहुत दूर तक कोई जीन ही नहीं होगा ना यार, नियर बाय जीन्स मौजूद है ना। अभी देखो ये 50 KB का स्केल है, इवन नाउ, पहले वाला तो ज्यादा होगा। 50 KB का मतलब क्या है, 50,000 बेस पेयर इतने इसी लेंथ में मौजूद है। जूम इन, मैं इसको जूम आउट करो 10x करके, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अगर मैं पहले एक जोन को जूम इन करूंगा तो क्या होगा, या किसी भी एक जोन को जूम इन करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा नहीं हो गया जूम इन। ये हम कहां पहुंच गए हैं, मिक्स जीन का फर्स्ट एक्सोन कौन सा है, इज दिस फर्स्ट एक्सोन, दिस वन, हाँ जी हाँ जी। ट्रांसक्रिप्शन, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन, ओके। इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज ना होए, यू शुड स्टिक विद द वन व्हिच इज हाईलाइटेड, ठीक है। मैं इसलिए इसी के साथ रह रहा हूं, हालांकि इन सब के मतलब है, मैं समझाना चाहूंगा लेकिन अभी, ठीक है। नेक्स्ट जूम इन करूं, अब 10x नहीं करते तो ज्यादा हो जाएगा, 3x करते हैं, एंड लुक एट द मिक वंस अगेन। ये दरमियान में कर लूं, जरा साइड पे जा रहा है, लेट मी टेक इट टू द मिडिल, ओके। ये मिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, शुड आई ट्राई टू जूम इन फर्दर, थोड़ा सा और करके देखते हैं हम इसकी असल शक्ल, वैसे जूम करके देखें ना अपनी शक्ल भी ड्रोनी लगती है, ओके। ये जरा ज्यादा नहीं हो गया, दिस इज द मिक जीन, स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, L is not starting from methionine। क्या ये प्रॉब्लम हमने देखी थी ना, याद है, दिस इज द वेरी स्पेशल थिंग वी केम टू नो द अदर डे, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर L D, लेकिन डीएनए सीक्वेंस नहीं है ना, देयर इज नो डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस दिखा रहा है हमें। इसका मतलब पहला अमीनो एसिड यहां से कोड हुआ है, दूसरा अमीनो एसिड यहां से कोड हुआ है, तीसरा अमीनो एसिड, यहां पर कोई डीएनए सीक्वेंस होएगा ना, वो कितने है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट डीएनए सीक्वेंस। थोड़ा सा और जूम कर लो, 1.5x कर लेते, शायद आ ही जाए, बहुत गंदा है, अभी भी नहीं आया, 1.5x और कर लेते हैं,
दरमियान में कर लूं उसको जरा साहब को जरा। रिमेंबर, इसमें से कोई भी जगह ऐसी थी जो जीनोमिक डीएनए नहीं हो। इधर दे आर इंट्रोन, दे आर एक्सोन्स, और दे आर बिटवीन इंटरजीनिक रीजन्स। और जूम करने लगा मैं, कैसे कैसे कर लेनी है जूम कर कर। Oh, can you see the DNA sequence now? This is the time, for the very first time, you are able to see the sequence of nucleotides over there. Oh, ये genomic DNA को हमने zoom करके देख लिया। That is how life actually looks like. Now think, this L came from where? This amino acid came from there. It starts, I don't know, from C or T, maybe from C, maybe from T. कैसे पता लगेगा कहां से स्टार्ट हुआ होगा? कैसे पता लगेगा कहां से स्टार्ट हुआ होगा? चेक करें क्या लिखा हुआ है, CTGGA। करें जरा मैच, पढ़ के देखें। CTGGA, आगे बहुत सारे टी, आगे बहुत सारे टी। That means that is the same thing.